तो ये जो हमने आज बात किया, ये दुनिया से उठ के आए थे मेंडल. ओके, so he was just amongst them. He had all these theories before him. तो इसीलिए अब हम लोग शुरू करेंगे मेंडलिज्म, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मेंडलियन एरा. समझ रहे हो? तो ये जेनेटिक्स के अगले अगले एराज हैं. नाउ मेंडलियन एरा या मेंडलिज्म. ओके, नाउ so the name, उनका नाम क्या था? The name was Johann Mendel. Okay, his name was Johann Mendel. Actually, a lot of people think that his name is Gregor Johann Mendel. No, Gregor is a part of his designation, जो उनको मिला था. ओके, तो वो उनका डेजिग्नेशन था, वो उनका नाम का हिस्सा नहीं था. ओके, so it was not a part of his name. So actually he is basically what? Johann Mendel. Okay, now so he was a very poor man. माने वो एक किसान के बेटे थे, तो इसलिए he did not have enough. Okay, he did not have enough money to sponsor his education. Okay, so that is why उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसीलिए अपना जो एजुकेशन को स्पॉन्सर करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रीस्टहुड अपना लिया इन मोनास्ट्री इन ब्रुनो, है कि नहीं? तो ब्रुनो में एक मोनास्ट्री था, उस मोनास्ट्री में उन्होंने एक प्रीस्टहुड को अपनाया कि अगर वहां प्रीस्ट बनेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, एंड उस पैसा को लेकर मैं अपना काम करूंगा. Okay, so for the sake of money, Mendel actually joined this priesthood because he was not rich enough to support his education. Okay, तो इसीलिए कुछ डिटेल्स उनके बारे में हम लोग को याद होना चाहिए. So वो डिटेल्स हम लोग लिख लेंगे उनके बारे में, फिर हम लोग चले जाएंगे उनका काम के ऊपर. ओके, सो जोहान मेंडल जो है, okay, was born into a German speaking family of Heinzendorf, Moravia. तब वो ऑस्ट्रियन एम्पायर में था. ओके, इन चेक रिपब्लिक. पहले एक्चुअली वो चेकोस्लोवाकिया था. ओके, नाउ इट इज कॉल्ड, नाउ इट इज चेक रिपब्लिक. ओके, now Johann Mendel was the second child of Anton and Rosine Mendel, farmers in Moravia, then a part of the Habsburg Empire in Central Europe. A rural upbringing taught him plant and animal husbandry. भाई गांव के जो लोग होते हैं उनको खेती वेती तो आता ही है. Okay, he was a good student, had an attraction towards and had no attraction towards family work. मैंने उन्हें किसान नहीं बनना था. Okay, इसीलिए उनका उसके काम के प्रति उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. So he always wanted to get out. Okay, so his luck changed. Actually, उनका जो किस्मत तब बदला. Okay, his luck changed when a teacher recognized his sharp mind. Okay, he then enrolled at Olomouc University, but finances interrupted his education there. Okay, तो वहाँ पैसा क्या गड़बड़ हुआ
His education is he concluded his education with the money of his younger sister's dowry. Okay, माने सोचो कि उन्होंने अपने पढ़ाई को करने के लिए अपनी छोटी बहन का जो डाउरी लिया. A favor he never forgot. That is the greatness of a man. Now, at the age of 21, Mendel left the farm and entered an Augustinian monastery, abbey उसको कहते हैं, of Saint Thomas in Brno. उसको पहले ब्रून बोला जाता था, अब उसको ब्रुनो बोला जाता है. With the help of his physics teacher at the Olomouc University on 7th September. तो इस यूनिवर्सिटी के जो फिजिक्स टीचर है उनके हेल्प से, उनके रेफरेंस से उनको वहां एक नौकरी मिल गया. And he badly needed that because he wanted to do his education, but money हर समय उनके अड़ंगे आता था. Okay, now in Brno he took the name Grigor upon entering the monastery. तो ग्रीगोर जो है उनको एक उपाधि के रूप में मिला. Here he stayed till his death. Okay, in 1847 he was ordained a priest. उनको priest की तरह से स्वीकृत किया गया. In 1851 he was sent to University of Vienna. एक्चुअली ये जो प्रीस्टहुड में ये एक इनकम्प्लीट स्टोरी है. जब ये प्रीस्टहुड के लिए अप्लाई किए थे, ही फेल्ड एन एग्जाम. ही वाज अभी नहीं लिखेंगे. ही वाज टू बी ऑर्डेन्ड एज ए प्रीस्ट, बट ही फेल्ड इन द एग्जाम. ओके, तो but he failed in the exam, इसीलिए उनका वो अटक गया. In 1851 he was sent to University of Vienna to study mathematics and physical science, जिसमें वो फेल कर गए थे. Okay, mathematics and physical sciences, in which he failed in the test of priesthood. Understood? In 1853 he returned to his monastery, okay, and started teaching mainly physics. His early adult life was spent in relative obscurity, doing basic genetics research and teaching high school mathematics and physics and Greek in Brno, now in Czech Republic. Mendel was inspired by both of his professors at university and his colleagues at the monastery to study variation in plants. Okay, इसीलिए he commenced his study in his monastery's experimental garden. मैं आपको वो फोटो दिखाऊंगा. Okay, तो जहां उन्होंने ये काम किया था. क्लियर? Now, between 1856 and 1863 कितने साल हो गए? बोलो. 7 years, है कि नहीं? तो इसलिए मेंडल ने काम कितने साल किया था? 7 years. ओके, ये ऑलरेडी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. 7 years. ओके, मेंडल cultivated and tested around 28,000 pea plants. समझ में? तो इसीलिए इस दौरान, इन 7 साल के दौरान उन्होंने अराउंड 28,000 पी प्लांट्स को कल्टीवेट किया. ठीक है. नाउ उनके पास एक छोटा सा प्लॉट था, तो दैट इज 23 by 115 फीट, एंड उन्होंने
उतने से जगह में जो काम किया उसने जेनेटिक्स को जन्म दिया। समझा? सो in 1856 Mendel began his historic studies on pea plants. Okay, for 8 years he grew and crossed thousands of pea plants. कुछ डाउट हुआ आपके मन में? कुछ डाउट हुआ? 8 years. 8 years. Yes, actually आप तो बोलोगे सर 7 years, बट मेंडल ने 1 साल प्रिपरेशन किया था। मेंडल ने किसी भी सीड से काम नहीं शुरू कर दिया। He started with pure breeding seeds. तो in order to obtain pure breeding seeds, उन्होंने 1 साल इन्वेस्ट किया। Okay. Now in a 23 by 15-foot plot, okay, in the university. Okay, एक छोटा सा प्लॉट में उन्होंने काम शुरू किया। He maintained mathematical records, and that is what is his plus point. Okay, he published his works entitled Experiments on Plant Hybrids in 1866. Okay, his experiments brought forth 2 generalizations which later became known as Mendel's laws of inheritance. है कि नहीं? तो उसको Mendel's laws of inheritance बोलते हैं। Actually, he wanted to work on mice. So he first worked on mice, but the local bishop found it offensive. तो क्यों? बोले सुबह भाई भगवान को पूजोगे, रात को मूसा मारोगे, तो इसलिए उन्होंने उसको मना कर दिया। तब he selected P. ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन मन में आया? कुछ खटका आपको? Why P? है कि नहीं? तो इमीडिएटली एक क्वेश्चन मन में आता है। सर, हाँ बोलो। why mice? माइस उनको अच्छा, देखो माइस पे सब, देखो क्या है, माइस पे काम करना बहुत आसान है। वो छोटा सा एनिमल होता है, घर में ही मिल जाता है कि नहीं? एंड वो जूलॉजी क्या है ना, आप उसको काटाकुटी करके देख सकते हो अंदर, ओके, विदाउट योर एनी माइक्रोस्कोप। बट प्लांट्स में एनाटॉमी स्टडी करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, उस समय वो सब फैसिलिटीज नहीं था, इसलिए पहले हर कोई एनिमल स्पीशीज पे काम करना पसंद करता था। ओके, एंड माइस वेरी कन्वीनियंट, है कि नहीं? इजीली मिल जाया करता था। तो नाउ वाई पी? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने क्यों उन्होंने पी लिया? इट इज एन एनुअल प्लांट। व्हाट इज एनुअल प्लांट? सीड to seed needs nearly 1 year, और आप कह सकते हो it breeds once a year। आप कुछ भी बोल सकते हो। मैंने तुम मटर लिए एंड मटर लौटाओगे, उसके लिए नियरली 1 साल लग जाता है। ओके, तापर सेकेंड पॉइंट, it is cheap, easily available. Okay, his background of agriculture, okay, his background of agriculture and its use after the experiment। माने ये वेस्ट होने वाला नहीं है, काम खत्म, मटर पनीर बना के खा लो, है कि नहीं? चलिए, तो इट्स चीप, इजीली अवेलेबल
his background of agriculture and its use after the experiment. Next point. Okay. It is a cleistogamous flower. Okay, cleistogamous flower का मतलब क्या होता है? Naturally self-pollinating. Okay, naturally self-pollinating और उसको हम closed flower बोलते हैं. Understand? तो इसका अगर आप फूल देखोगे वो बंद होता है. सामान्य कौन? So there is no chance of external fertilization naturally. है कि नहीं? ये फ्लावर बंद होता है. इसीलिए जब ये खुलता है, okay, before opening already pollination is completed. है कि नहीं? जब तक फूल खुलता है, दुनिया के लिए दिखता है, तब तक पॉलिनेशन खत्म. Understood? But it could be क्रॉस पॉलिनेटेड. कैसे क्रॉस पॉलिनेट किया जाएगा बोलो? आर्टिफिशियली. हाँ, इट कुड बी क्रॉस पॉलिनेटेड आर्टिफिशियली बाय नंबर 1. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ओके, इमैस्कुलेशन और removal of anthers before the pollination occurs in the bud stage. Okay, तो आप बर्ड स्टेज में ही उसका पॉलन निकाल दीजिए. ओके, उसका जो एंथर्स, तो रिमूवल ऑफ एंथर्स बिफोर द पॉलिनेशन अकर्स इन द बड स्टेज. तो इससे क्या हुआ? हमने उसके मेल को रिमूव कर दिया, बट पॉलिनेशन के बाद फिर पॉलिनेशन हो सकता है, तो इसलिए बैगिंग आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, बैगिंग आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन. तो comma, this ensures that there is no contamination after pollination. Okay, it ensures that there is no contamination after pollination. समझ रहे हो? एक बार आपका पॉलन डल चुका है, उसके बाद कोई पॉलन नहीं डलना चाहिए. ठीक है? सो बहुत अच्छा फ्लावर है. नेक्स्ट. ओके, he found 7 pairs of contrasting characters. Okay, he found 7 pairs of contrasting characters. मतलब कोई टेंशन ही नहीं है. इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब क्या है? कि उसका एक दूसरे से आस-पास का भी रिश्ता नहीं है. सपोज अब मैं आपको पूछूं कि आद्या सिंह गोरी है ना सत्य सार्थक, तो क्या बोलेंगे बताओ? एकदम टेंशन फ्री बताओ, कोई कंप्लेन मेरे को बाद में नहीं चाहिए. हु इज मोर फेयर, आद्या सिंह और सत्य? जल्दी बोलो, ये सब बेकार क्वेश्चन में टाइम मत खाओ. इस पे आपको कोई नीट नहीं मिलने वाला है. बोल सकते हो? सर आद्या सिंह. डोंट बी सो
हाँ क्या? Obviously, Adya Singh, sir. स्टूपिड, तुमसे तो गोरा मैं हूं। चलो, तो समझ में आ गया। तो एक्चुअली दिस इज नॉट ए गुड आंसर बिकॉज सत्या इज ट्राइंग टू पटा आद्या। ओके, वो उसको मीठी मीठी बातों से फंसाने का कोशिश कर रहा है ना। ये इतना क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं है, बट अगर पूछा जाए कि आद्या सिंह इज फेयर और वन ऑफ माय फ्रेंड्स, हिज नेम इज व्हाट, हुसैन, हुसैन बोल्ट, Adya Singh. तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब समझे, एकदम इधर उधर, आसपास भी नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट एंड इसको हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन बोलते हैं। नाउ विच is produced by mutations. Okay, which is produced by mutations. Now, अभी जो है, आप लोग जब स्कूल जाते हो तो ऐसे ही सब यूजलेस सा एक तो यूनिफॉर्म है गंदा सा, उसमें कोई लड़की हॉट दिखती नहीं है। ओके नहीं, सब आंटी आंटी दिखते हैं। तो सारे लड़के भी, कोई इधर उधर घूम रहा है, कोई इधर लड़कियों के पीछे घूम रहा है, कोई लड़की लड़के के पीछे घूम रही है, इसी तरह चलता रहता है। बट सडनली अगर एक गोरी चाइनीज सी लड़की छोटे छोटे कपड़ों पहन के, हाई हील्स पहन के आ जाए, तो नजरें लड़कों की कहाँ चली जाएंगी? इमीडिएटली टुवर्ड्स द गर्ल। क्यों? बिकॉज इट इज सच ए सडन एंड सच ए ब्यूटिफुल वेरिएशन। अंडरस्टूड? तो इसीलिए डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो मेंडल, ये टर्म, ये एक्चुअली मेंडल को पता नहीं था कि वो उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग क्यों लिया था, क्योंकि ये ढूंढना आसान है। ओके, जैसे आप देखो पर्पल एंड वायोलेट, ये कैरेक्टर को ढूंढना आसान नहीं है, बट अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट ढूंढोगे तो आसान है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए ही टुक बिकॉज इट इज कॉन्ट्रास्टिंग। मैं ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन टर्म इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि डार्विन ने उसको क्यों रिजेक्ट किया था बाद में। तो हाउ आर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड? बाय म्यूटेशंस। ओके, तो इसलिए ही फाउंड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ओके, he also saw that each character, okay, he also saw that each character is represented by 2 traits. Okay, 2 contrasting traits. समझ रहे हो? तो इसीलिए जो कैरेक्टर में क्या आ जाएगा? प्लांट हाइट। ट्रेट्स में क्या आ जाएंगे? टॉल एंड ड्वार्फ। अंडरस्टूड? तो कैरेक्टर में आ जाएगा प्लांट हाइट, ट्रेट में आ जाएगा टॉल एंड ड्वार्फ। डू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए उन्होंने देखा कि हर एवरी कैरेक्टर is represented by 2 contrasting traits. ठीक है? So this is the concept of, let us discuss the characters. Okay, so now we will create a beautiful box. Clear? So now this is the character and these are the contrasting traits. Understood?
तो इसीलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कैरेक्टर, उसके बाद हम लिखेंगे डोमिनेंट ट्रेट, एंड उसके बाद हम लिखेंगे रिसेसिव ट्रेट। अंडरस्टूड? सो सीरियल नंबर, कैरेक्टर, dominant trait and recessive trait. Okay, so now please pay attention. So these are what? So these are the 7 pair of Mendelian. Okay, 7 pairs of Mendelian characters. ओके, चलिए। सो अब हम लोग जाएंगे, तो इस ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैं आपको जीन नोटेशन पढ़ाऊंगा, हाउ टू डिनोट ए जीन। तो जो सबसे पहला फीचर है, सपोज हमने लिया प्लांट हाइट, तो एक्चुअली ये जो टेबल है ये उनका प्रोडक्ट है, रिजल्ट है। ओके, तो उन्हें मिला डोमिनेंट कौन सा, टॉल, एंड रिसेसिव कौन सा, ड्वार्फ। ना डोमिनेंट का मतलब क्या है मालूम है, कि ड्वार्फ उसके सामने जिंदगी में कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज द केस। तो अब हमें जीन अल्फाबेट्स लेना है। तो जीन अल्फाबेट्स लेने के लिए आप डोमिनेंट से कैरेक्टर ले सकते हो या रिसेसिव से ले सकते हो। अंडरस्टैंड? सो यू कैन टेक आइदर टी और डी, आप कोई सा भी ले सकते हो। फाइन। प्लस यू कैन टेक 1 to 3 अल्फाबेट्स। सपोज आपका टी डी दोनों टी है, तो आप अलग नहीं कर सकते, इसलिए टी ए टी यू लेना पड़ेगा। सपोज दोनों टी ए है तो थर्ड अल्फाबेट लेना पड़ेगा। इसलिए अप टू 1 से 3 अल्फाबेट्स आप ले सकते हैं। डोमिनेंट से ले सकते हैं या रिसेसिव से, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा पहले से। एंड जो आपने एक के लिया वही कंसेप्ट सबके लिए लेना अनिवार्य है। Here you cannot do discordance. Understood? तो इसीलिए ये आपका टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स है। तो अब सपोज मैं अल्फाबेट्स कौन कौन सा ले सकता हूं, आइदर ले सकता हूं टी या ले सकता हूं डी, बट इसमें हमारे पास एक जो कैपिटल जो है वो डोमिनेंट के लिए है, एंड जो स्मॉल है वो रिसेसिव के लिए है। So always dominant will be written caps and recessive will be written small. तो इसीलिए प्लांट हाइट, तो अगर आप कैपिटल टी लेंगे तो रिसेसिव स्मॉल टी, अगर आप कैपिटल डी लेंगे तो रिसेसिव स्मॉल डी। तो उसी तरह टॉल कैसे लिख सकते हैं हम, डी से लिख सकते हैं टॉल या डी। ड्वार्फ हम स्मॉल टी से लिख सकते हैं या स्मॉल डी। प्लीज रिमेंबर, if you will take T, then you have to take small t. If you take D, then you have to take small. Understood? Yes, sir. चलिए, तो अब हम लोग दूसरा केस करेंगे। सेकेंड ट्रेट लेंगे। नाउ जो सेकेंड ट्रेट है उसमें हम लोग लेंगे सपोज क्या, सपोज इन द सेकेंड ट्रेट हम लेंगे सीड शेप। तो सीड शेप में है आपका राउंड एंड रिंकल। ठीक है। समीक्षा, राउंड को हम कैसे लेंगे,
जल्दी, राउंड को आप कैसे लोगे? विच अल्फाबेट? कैपिटल आर, हाँ, कैपिटल आर, और कैपिटल डब्ल्यू। तो रिंकल को कैसे लेंगे? स्मॉल आर या स्मॉल डब्ल्यू। अंडरस्टूड? अब अगला कैरेक्टर है सीड, कोट या कॉटिलेडॉन, कलर। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या लेंगे एक्चुअली? तो ये जो हो जाएगा आपका आर डब्ल्यू और स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू, है कि नहीं? तो इधर सीड जो कॉटिलेडॉन कलर है, तो वो जो डोमिनेंट कलर है वो है Yellow. गुगुनी, एंड ग्रीन जो है मटर पनीर। तो इसलिए ग्रीन रिसेसिव कलर है एंड येलो डोमिनेंट कलर है। तो हाउ टू राइट येलो? कैपिटल वाई और कैपिटल जी, स्मॉल वाई और स्मॉल जी। तो इधर हम लिख देंगे कैपिटल वाई और जी वर्सेस स्मॉल वाई या स्मॉल जी। अंडरस्टैंड? ना उसके बाद आ जाएगा हमारा फोर्थ कैरेक्टर लेंगे। ना फोर्थ कैरेक्टर जो है उसमें हम लेंगे फ्रूट शेप। फ्रूट को हम पॉड कहते हैं, उसका छिलका, पॉड शेप। तो इधर वो आता है फुल, तो उसको हम कैसे लेंगे? एफ या सी, एंड उसका रिसेसिव है कॉन्स्ट्रिक्टेड, उसको स्मॉल एफ या स्मॉल सी बोलेंगे। ओके ना, फुल का मतलब क्या है? अगर आप वो मटर को देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर कितने बीज हैं, पर कंस्ट्रिक्टेड में अगर आप मटर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर 3 बीज है। अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रूट शेप। उसी तरह से अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिफ्थ पॉइंट इज फ्रूट कलर। तो उसमें ये उल्टा हो जाता है, डोमिनेंट जो है वो ग्रीन कलर को होता है एंड रिसेसिव जो है वो येलो कलर का होता है। इसलिए इसको हम कैसे लिखेंगे? जी ऑब्लिक वाई, एंड येलो में लिखेंगे स्मॉल जी ऑब्लिक स्मॉल वाई। ठीक है, सो ये आपका नेक्स्ट फीचर हो गया। अब जो अगला कैरेक्टर हम लेंगे, सो दैट इज योर फ्लावर कलर। ओके, नाउ अगर हम लोग लेंगे सिक्स्थ कैरेक्टर इज फ्लावर कलर। तो इसमें थोड़ा वेरिएशन है, तो इसको बहुत बुक्स पर्पल लिखता है, बहुत बुक्स वायोलेट लिखता है। तो हम लोग वायोलेट लेंगे क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया है, एंड रिसेसिव इज व्हाइट, तो इसको हम लोग व्हाइट बोलते हैं। तो आप स्मॉल भी लेंगे या स्मॉल डब्ल्यू लेंगे, ये कैपिटल डब्ल्यू या स्मॉल डब्ल्यू, देख रहे हो? तो जेनेटिक्स में आपको साफ दिखना चाहिए, तो अगर नहीं दिखा तो गड़बड़। एंड द लास्ट फीचर इज फ्लावर पोजीशन। ओके, तो फ्लावर पोजीशन जो डोमिनेंट फ्लावर है वो एक्सियल होता है। सपोज ये ब्रांच है, ओके, तो इसमें क्या होगा? जो फूल है वो एक्सिस पे लगा होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं दैट ब्रांच बिगिंस विथ ए फ्लावर, है कि नहीं? तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? ए से या कैपिटल टी से। इधर ट्रेट है टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है?
जो फूल है वो ब्रांच के एंड में होगा और ब्रांच एंड्स विथ ए फ्लावर। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल ए या स्मॉल। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो Yes, sir. ये जो 7 कैरेक्टर है ये आपके खून में मिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक चंदा तारा रहेगा ये 7 कैरेक्टर जिंदा रहेगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल बी डिसकंटिन्यूइंग द क्लास। कुछ डाउट्स है तो आप पूछिए, बिकॉज अगला क्लास में जो है, जो कि हमारा शायद कल है ना, क्या टुमारो वी हैव अ क्लास ना, तो टुमारो Yes, sir. क्रॉस करेंगे मेंडल का फर्स्ट। ओके, तो एनीथिंग यू हैव टू आस्क, यू कैन आस्क। वीडियोस आर Sir, posted, you can go and see also। हाँ बोलो। sir, full is same as inflated. या आप फुल Okay, ले sir. सकते हो या इन्फ्लेटेड ले सकते हो। और बोलो। any other doubts? 1 मिनट बचा है, वो कट जाएगा। चलिए ठीक है, तो आई एम एंडिंग द मीटिंग। विल सी ईच अदर टुमारो।